अगर आप एट द रेट 15% कर रहे हो और 15 ईयर तक कर रहे हो तो 1 करोड़ बन जाएगा. फर्स्ट यू कैलकुलेट योर नेटवर्थ. अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहती तो हमें कोई भी ट्रैप कर सकता है इग्नोरेंट की वजह से. आई हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ दैट लेस नॉलेज ऑन दैट इनिशियल ईयर्स पीपल गेट इनटू ट्रैप. Hello, Mr. Divakar. Namaskar. हेलो कपिल जी. हेलो. How are you, sir? गुड आफ्टरनून. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So, sir, आज we are here to help the kids, the teenagers, to actually learn from you and go towards the path of financial freedom. And I'm sure whatever you'll say will be priceless today. Yeah, sure. So you are doing this very needed thing in this education and information age that we are lacking. In that young age, people don't, or students don't know much about finance, and that is very good initiative what you had taken today. Thank you. Yogaji, I'm in the career space and I meet parents and kids all the time. And obviously, there is a struggle when it comes Right. to higher education, right? Either they are looking for educational goals and etc., but they could never figure out in an early age that if they would have done financial planning in the right way, they might not need even the education loan at a later stage, right? So that's why I thought ki I should invite you for this podcast so that together we can actually help them. Right. Very much right. So let's get started, right? Yeah, sure. Okay. So, for example, when I see, because it has been my struggle also when I was, opting to go to college, and I would aiming for the best universities. But besides that, there was always a dilemma: how will I afford it, right? So most students actually think finance is something they should worry about later in life, because even I was in the same way. Okay, when I am a student, why should I be taking care of it? My parents can do that. So I was, being a commerce student, still I was not inclined toward it. And today, after 3 decades, I understand that that was a huge mistake that I did at that time. So why do you think financial literacy should start early, even in school or college? Right. So as I see that basically finance is also a life skill, right? Like we do reading, writing or cycling. So अगर हम बचपन में साइकिल चलाना नहीं सीखे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यंग एज में हम साइकिल चलाना सीख पाते हैं, टू व्हीलर सीख पाते हैं. वी जस्ट स्टार्ट विथ फोर व्हीलर ओनली. सो एक तो वन रीजन ये है कि हैबिट्स जो है वो बचपन में बन जाए तो बहुत अच्छा. सेकंड थिंग इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. That very much is required at that young age to understand how it works. Because in my profession, while I consulting people, I see like 40-45-year-old professionals even don't know what is the power of compounding, right? He or she even don't know what is his or her net worth. So these 2-3 terms, which is very important for any individual to understand, and if they could understand it in the beginning of their career or at the starting years of their age, that will benefit a lot in that future years of their life. So power of compounding is one thing that they should understand. And to get out of some financial trap also, that basic thing is very much required. अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहती तो हमें कोई भी ट्रैप कर सकता है इग्नोरेंट की वजह से. So that is also very I have seen that because of that less knowledge on that initial years, people get into trap because lot of selling happening on that basis of कि इतने लाख हो जाएगा, आप इतने 1000 जमा करो ईयरली एंड इतने लाख हो जाएगा. They never talk about percentage gain, CAGR kind of terms. So यहाँ पे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो बहुत आप के साथ धोखा हो सकता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में. So these are 3-4 reasons I see that people should get into this financial at the early age, so that basic concepts should be clear. And if you know the basics thing, you feel confident. So that also give you a boost that next step is what. Because in that other countries include finance in their school curriculum also.
So India should also do that thing, I think. हाँ, डेफिनेटली बिकॉज आई लुक एट माई सेल्फ, Mm-hmm. ठीक है ना, कि मैंने क्या गलतियां की, Right. बट आई कैन सी बिकॉज यू आर इन टू दिस स्पेस, तो आप बहुत लोगों से मिल रहे होंगे, एंड आई एम Right. श्योर वो टीनेजर्स भी होंगे, मिडिल एज्ड पीपल भी होंगे, राइट, द पेरेंट्स who are actually looking for some, because now some kind of awareness is still there, but people are not aware of the way out, रास्ता क्या पकड़े, ठीक है। और फिर ये बात सही है, देखिए स्कैम से बहुत डर लगता है। आप मानेंगे आज के समय में फेसबुक पे इफ अ ब्यूटीफुल फीमेल कनेक्ट्स विद यू, उसके बाद वो आपसे फाइनेंस की ही बात करती है। मतलब आप सोचो कि why will I invest just by looking at the beauty of a person? Mm-hmm. I should be looking at the knowledge of a person, Right. right? Right. तो लोग और फंसते हैं, लोग, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, what are some of the biggest money mistakes young people make in their 20s and how they can avoid them? Because ये मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज लाइक लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मतलब हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम माइनस में रहेंगे। तो सीधे सिंपल मैथ ही है कि जितना आ रहा है उससे कम खर्च करें, लिविंग बियॉन्ड मीन्स रखें, चीजें अपने आप ही कंट्रोल में रहेगी। और क्या है कि कभी कभी होता है कि हमारा हैबिट नहीं होता कि इन्वेस्टिंग करना या सेव करने की हैबिट नहीं होती, तो उसको अगर धीरे धीरे अर्ली एज में अगर स्टार्ट करें, सिंपली 500,000 रुपीज का सिप भी मंथली कर रहे हैं या जो भी हम पॉकेट मनी रिसीव कर रहे हैं उसको कहीं से इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं या उसमें कुछ बजटिंग का माइंडसेट लगा रहे हैं, तो आई थिंक ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई थिंग्स पाइलिंग अप एंड बड़ा होता जाता है और पीछे रह जाती है। फिर हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते एक सर्टेन एज पे जाके। तो हमें जो चीज जल्दी मिल रही होती है, जो कोई एक्सपर्ट हमें बता रहा होता है, बाय डिफॉल्ट हम उसे मान लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूज का बहुत यंग एज से हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन हम जैसे जॉब लगती है तो क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बड़ा डेप्ट ट्रैप होता है जिसमें 30-40% का हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी, और प्लस है कि इन्वेस्टमेंट टिप्स में फिर हम चले जाते हैं क्योंकि लर्निंग का टाइम नहीं होता, हम जॉब में होते हैं, तो ट्रिप्स होता है, कुछ इस तरह की चीजों में हम फंस जाते हैं एंड फिर वहां से नेक्स्ट स्टेप जो है वो गलत ही होता जाता है। तो जो भी सीच करें, अगर मतलब स्टार्ट अच्छा है तो मतलब सब चीजें सही रहती है। और टाइम जो मैंने कहा कंपाउंडिंग है, वो भी बहुत हमें पीछे ले जाता है। अगर हमने राइट टाइम पे या यंग एज पे स्टार्ट नहीं करी तो भी बहुत डिले हो जाता है, एंड देन वी वांट की नहीं, जल्दी क्या कर सकते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं, एंड देन इम्पेशेंट होने की वजह से ही गलतियां होती है। कि जैसे होता है ना कि अगर हम कोई स्लो स्पीड की गाड़ी चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एक्सीडेंट के कम चांसेस है, लेकिन एकदम से जल्दी और हाई स्पीड में हम कुछ करना चाहते हैं तो एक्सीडेंट पक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंपाउंडिंग का तो जैसे ये रूल है कि भाई 15,000 पर मंथ अगर आप एट द रेट 15% कर रहे हो और 15 ईयर तक कर रहे हो तो 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये चीजें कंपाउंडिंग और मैथमेटिक्स प्रूफ करता है, लेकिन हम नहीं करते। ये हमें चाहिए 50% का ग्रोथ या x 2x 3x बजवर्ड में हम फंस जाते हैं। हर साल डबल होना चाहिए। तो क्योंकि सर हमें मटेरियल थिंग्स अट्रैक्ट करती है ना, और खासतौर पे बच्चों को। एग्जैक्टली। भाई पेरेंट्स की अपनी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों की कितने शौक पूरे कर सकते हैं, राइट। और उस जल्दबाजी में हम गलती करते हैं, ठीक है ना। और सेविंग्स स्टार्ट करना चाहिए यंग एज से, और थोड़ा क्रेडिट कार्ड और डेप्ट से दूर रहे, तो बेसिक और लर्निंग स्टार्ट करें कुछ, मतलब बुक से करें या कुछ भी करें, तो वो एक तरीका हो सकता है। इन आवर फैमिली सेटअप इन इंडिया हम कहते हैं भाई मेनी स्टूडेंट्स रिलाई ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, कि भाई पॉकेट मनी भी वही दे रहे हैं, सारे खर्चे भी वही उठा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को तो ये कह दिया जाता है भाई तुम पढ़ाई कर लो बस अच्छे से, राइट, और कुछ हम अब सब कुछ अपने आप देख लें। अब मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि इवन बच्चा तो पेरेंट्स पे रिलाई कर रहा है, बट इवन अ पेरेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, कि वो किस तरह से चीजों को मैनेज करे। तो हाउ कैन दे स्टार्ट
taking small steps towards while still in college? कॉलेज में तो जैसे मतलब हमने सुना था अब तक, और अब इंडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। जैसे यंग एज में स्टूडेंट कैन वर्क आउटसाइड, लाइक मतलब मैकडी का तो हमें एग्जांपल मिलता था, बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस लाइक इवन ट्यूशन भी, या फिर साइड हसल्स कर सकते हैं, या आजकल सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें हैं कि यू कैन टीच ऑन और ऐड वैल्यू। बेसिकली क्या है कि कोई आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। सो देयर आर 3-4 वेज यू कुड क्रिएट वैल्यू एंड अर्न मनी। तो एक बेसिक चीजें होती है जो मैं मतलब अपने स्टूडेंट को या फर्स्ट ये सिखाता हूँ कि कैसे मनी जनरेट होता है, ये सीखो, राइट? तो मनी कैसे जनरेट होता है, आइदर यू शुड गिव सम अदर पर्सन ए प्रोडक्ट और सर्विस, इन रिटर्न दे विल गिव यू मनी। तो ये पुराना था कि प्रोडक्ट एंड सर्विस दो और पैसा मिलेगा। नया एज में अब क्या है, यू कुड गिव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट कर लो, गाना दे दो कुछ, है ना, और या फिर कोई आइडिया दो, है ना, तो भी आपको उस रिटर्न में पैसा मिल जाएगा। और क्योंकि यंग एज के पास पहले चैलेंज थी कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते या कोई सर्विस तो दे नहीं सकते, तो आज की डेट में आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया कुछ भी दे सकते हो एंड देन यू कुड जनरेट मनी। इवन बुक रिव्यू कर रहे हो तब भी आप पैसे कमा सकते हो, कुछ भी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। और तीसरा तो ये हो गया आइडियाज, एंड चौथा तरीका हो गया कि पैसे से पैसा बनाना, दैट इज इन्वेस्टिंग। तो ये 4 तरीके हो गए। अब आपको पहले हमें ये क्लैरिटी नहीं थी, तो जब तक जॉब में रहते हैं तब भी हमें लगता है नहीं हमें सर्विस दे के ही करना है, या कोई प्रोडक्ट बना रही है हमारी कंपनी तो उसके थ्रू ही पैसा जनरेट हो रहा है तब हमें सैलरी मिल रही है। तो ये सब चीजों की जब क्लैरिटी आती है ना कि प्रोडक्ट सर्विस, एंड वो तो हम करेंगे ही करेंगे एक्टिव इनकम के लिए, क्या हम पैसिव इनकम के लिए या फिर कोई साइड हसल से, क्या ये 2 आइडिया से या पैसे से पैसा कमा सकते हैं, तो दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प कि आपका एक इनकम स्टार्ट हो जाए। राइट, थैंक यू, दैट्स एक्चुअली मेकिंग सेंस इवन टू मी। और तो मुझे लग रहा है कि हाँ, काश ये बातें पहले पता होती, इतनी क्लैरिटी अगर होती तो तो हम आज फाइनेंशियल हीरो होते। राइट मेरे भी काफी लेट समझ आया, लास्ट 7-8 ईयर्स में समझ आया कि नहीं चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, मतलब पैसा यहाँ से जनरेट होता है। इसी तरह एक लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग भी है। जैसे स्टूडेंट है तो एक स्टेजेस ऑफ नॉलेज है कि जैसे कि हम स्टूडेंट है, कोई अर्निंग नहीं कर रहे तो 0% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। एक एज पे जब हमें जॉब लगती है तो हमारा 3-5% रेट ऑफ मतलब रिटर्न हो जाता है, क्योंकि हमारी सैलरी होती है, उसमें कुछ मतलब पीएफ कट रहा होता है और एफडी में कुछ कर दिया जाए, तो 3-5%, 10% रिटर्न है। जैसे जैसे हमारी थोड़ी सी कैरियर में ग्रोथ आता है, हमें नॉलेज बढ़ती है, लोग हमें फॉलो अप करने लग जाते हैं कि प्रॉपर्टी ले लो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो, इक्विटी ले लो, देन वी स्टार्ट कि हाँ अब थोड़ा सा मेंटल ग्रोथ हो रहा है, नॉलेज ग्रोथ हो रही है, और वहां से फिर हम 12-15% पे जाते हैं। और अगर हम ज्यादा ही मतलब थोड़े से अग्रेसिव हैं, लर्न कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंडिविजुअल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, देन वी कुड जनरेट इवन मोर 25%, 30%, 35%। तो ये जर्नी है और ये टाइम के साथ आएगा। किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को 60 ईयर्स तक भी उसे जॉब वाले ही अर्निंग 7-8% अर्निंग ही समझ आता है। तो ये बात है बेसिकली। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स मोर, आई एम इंटरेस्टेड इन बच्चों की मदद करनी है। तो और हमें पता है कि इन इंडिया एजुकेशन इज गेटिंग एक्सपेंसिव, राइट? एंड एक्चुअली आई हैव मेट सो मेनी पेरेंट्स हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद फंडिंग देयर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, और इसीलिए एजुकेशन लोन का जो है चलन अब बढ़ रहा है। But what are the best strategies for parents to plan and save effectively? जैसे ये समस्या ना, तो एक इसमें आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं पेरेंट्स अर्ली एज पे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 15,000 15 ईयर तक अगर हम 15% पे करें तो 1 करोड़ हो जाएगा, तो एटलीस्ट 10,000। थोड़ा बताओगे सिप क्या होता है? व्हाट इज सिप? हाँ, सिप इज लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट? जो मंथली हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरीके को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। या आप मैनुअली खुद से कर सकते हो एक प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ कि मैं 5th ऑफ एवरी मंथ आई विल बाय समथिंग, और किसी में हमें इन्वेस्ट करना है। और बैंक ने अपने प्रोडक्ट के साथ इसे ऑटोमेटिक भी कर दिया है कि सम अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी अकाउंट, और वो सिप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में डिफरेंट वो सिप हो जाता है कि भाई आपका ऑटोमेटिक हो गया, तो यू डोंट हैव टू वरी कि पैसा आया और ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सिप है बेसिकली। सर, लेकिन आप कह रहे हो कि
15% पे, ठीक है। अब हम हाँ, लोगों को मतलब तो 12 आदत to है 15, एफडी की, वो तो राइट। 6-7% पे, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जाती है 8% पे। तो जो राइट। यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको तो 6-7% ही मिलेगा। तो ये 15% कैसे पाएंगे वो? नहीं, सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए अच्छा। बता रहा हूँ कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में कैसे अपने मतलब लोन से स्ट्रगल से बचना है, तो जब भी मतलब आपके किड्स हुए हैं, तब से आप एक जर्नी प्लान करो कि 5,000 10,000 कुछ ईएमआई स्टार्ट कर दो, एंड देन इन 10-15 ईयर जब वो एक हायर एजुकेशन के लिए तैयार होगा, देन योर कॉर्पस विल ऑल्सो इंक्रीज टू 30, 40, 50 लाख। तो ओके। एक तरीका ये हो सकता है। हम्म। और कुछ एजुकेशन लोन वगैरह पे आप कुछ मतलब गवर्नमेंट लोन ले सकते हैं या स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये दूसरा तीसरा तरीका हो सकता है कि आप कैसे एजुकेशन की जो चैलेंजेस हैं पेरेंट्स के लिए स्ट्रगल हो जाती है एक हायर एजुकेशन, हम्म। उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं। तो सर, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में है, राइट। और 12th के बाद उसको जो है जाना है हायर एज, तो अभी एक तरह से मेरे पास 10 साल का समय है, राइट? हम्म। तो क्या हम ये इन एडवांस, लाइक 10 years इन एडवांस, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे 12th के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, और कि आज अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी का ड्रीम कर रहा हूं, आज मुझे पता है उसकी फीस इतनी है, तो आई कुड एस्टिमेट कि भाई आफ्टर 10 years ये फीस होगी, और उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आई एम समवेयर नियर दैट फिगर आफ्टर 10 years। हाँ बिल्कुल, कैलकुलेट मतलब मैथ्स की यही तो ब्यूटी है कि एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट, राइट। तो जैसे आप 7% या 10% पे आप फीस जो करंट फीस है उसको ग्रोथ कर सकते हो कि भाई 10% से ग्रोथ करेगा तो अराउंड 7 ईयर में वो डबल हो जाएगा। जैसे 72 का रूल ये है कि अगर 10% से कुछ चीजें ग्रो हो रही है तो वो डबल 7 ईयर में हो जाएगा, है ना। तो अगर आज फीस सम अमाउंट है तो वो डबल 7 ईयर में हो जाएगा, और 10 ईयर का है तो उस हिसाब से 1.5 टाइम्स या के आसपास हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपने फीस को तो कैलकुलेट कर लिया, अब आप अपनी अर्निंग की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी मेरे पास ये अमाउंट है, एक्स अमाउंट, और मुझे एक्स 3x चाहिए या 5x चाहिए, तो वो कितने ड्यूरेशन में 10 साल में बनेगा, उसमें मैं कितना ऐड भी करूंगा, तो वो सारी कैलकुलेशन बड़ी इजीली हो जाती है। ओके, ओके, ग्रेट। नाउ ठीक है दैट्स कि मैं गुड कि कितने अमाउंट बच्चों। सेव करूं और कितने हम्म। मिनिमम जो हमें लगता है कि एक मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, 12% रखना चाहें तो 12% रख लें, जो भी मिनिमम आपको लगता है कि आइडियली अचीवेबल है वो रख के आप ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कमिंग टू दिस, क्योंकि लोन्स की हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेट। तो ये बात हम लोग जानते हैं, लोन्स आर अ रियलिटी नाउ, राइट? क्योंकि चाहे अपनी कंट्री में पढ़ना हो, चाहे अब मैं स्टडी अब्रॉड में भी हूं, तो बच्चे बाहर जाने के लिए भी लोन्स लेते हैं। तो हाउ कैन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इंश्योर दैट दे टेक एजुकेशन लोन्स आल्सो वाइजली विदाउट फॉलिंग इनटू अ डेट ट्रैप? तो ऐसे में उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ मतलब जैसे भाई एक तो लोन को तो अवॉइड कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर हम्म। लोन लेना ही है तो फिर देखें कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज या कोई बैंक्स हैं जो स्टूडेंट को अच्छा लोन के परसेंटेज में मतलब कम में दे रही हो, हम्म। बहुत ज्यादा। जैसे एक विद्या लक्ष्मी स्कीम है दैट इज ऑफर ए लोएस्ट इंटरेस्ट हम्म। रेट्स, एंड जब हम बोरो करें तो ट्यूशन फीस की ही बोरो करें, मतलब लाइफस्टाइल के लिए नहीं करें कि हॉस्टल फीस भी इंक्लूड हो जाए। कहीं से हम हम्म। कोशिश करें कि हमारी भी प्रोपोर्शन स्टार्टिंग से रहे, और एक हम्म। रीजनेबल पेमेंट प्लान भी करें, क्योंकि अगर ईयर्स बढ़ाएंगे आप तो अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा। तो कोशिश करें कि जितने मिनिमम ईयर्स में आपको लगता है पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल जाएगी उतने के लिए रखें, एंड देन कोशिश करें जैसे ही आप पढ़ाई खत्म होती है तो यू कुड स्टार्ट पेइंग ऑल्सो। रीपेमेंट प्लान का भी आपके पास माइंड में होना चाहिए, एंड अग्रेसिवली यू शुड रीपे ऑल्सो। सो दिस विल हेल्प कि भाई जो लोन खत्म हो एंड देन फिर नया कॉर्पस स्टार्ट हो बच्चे अच्छा, का या इससे मेरा, आपने जो बात बोली उससे मुझे एक आया आइडिया, और मतलब आइडिया क्या कि एक डाउट आया है, कंफ्यूजन है, राइट। कि मान लीजिए मैं जब जॉब मैंने ले ली, और मेरा जो एजुकेशन लोन है वो लेट्स से वो 10,000 पर मंथ का है, ठीक है। ठीक है। अब इज इट वाइज टू कि मैं बैंक जाऊं और कहूं कि भाई आई कैन पे मोर, तो अब मेरी ईएमआई बढ़ा दीजिए, ये मुझे राइट। करना चाहिए? या फिर मैं कहूं कि नहीं, अच्छा मैं इसको 10,000 ही दूंगा,
बट जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है एज सेविंग, लेट मी इन्वेस्ट, तो विच इज अ बेटर ऑप्शन? हाँ, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें कि किस पे हम कितना कमा पा रहे हैं। अगर हमने एफडी में रखा हुआ है 6% पे, या सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है 3-4% पे, और 8% पे हमारा लोन चल रहा है एजुकेशन लोन, तो हमें लोन दे देना चाहिए। अगर लगता है कि यू कुड इन्वेस्ट इन 10-12-15% आप ग्रो करा सकते हो म्यूचुअल फंड से या इंडिविजुअल स्टॉक से, तब आपको लोन चलते रहना चाहिए। क्योंकि बस रेट का खेल है कि बैंक को आप कितने रेट पे दे रहे हो, अगर वो पैसा उसको नहीं दे रहे तो आप कितने रेट से उसको ग्रो करा सकते हो। अगर लगता है कि मेरे में काबिलियत नहीं है ग्रो कराने की, तो आप लोन रीपे कर दो। और इट्स बेटर कि लोन को आप रीपे कर दो पहले, है ना, मतलब इट्स बेटर। बट आप बिजनेस माइंड सेट के हो और लगता है कि नहीं मैं ग्रो करा सकता हूँ, तो इट्स ओके ऑल्सो टू कंटिन्यू विद द लोन एंड वो आप 12-15 कम से कम 2-3% का भी डिफरेंस है तो यू शुड गो कि हम इन्वेस्ट करके ग्रो करेंगे। लोन तो ईएमआई के थ्रू जा ही रहा है धीरे धीरे, जा ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन, जैसे स्टूडेंट को तो पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है। अब लेट अस से कि 1000 से 5000 रुपए उसके पास है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, या वो एक दो ट्यूशन पढ़ा रहा है, चलिए, तो उसने वहां से कुछ पैसे कमा लिए, तो अब उसके वो अपने खर्चे भी देख रहा है और ही इज ट्राइंग टू सेव सम अमाउंट। तो 1000 से 5000 के बीच में अगर कोई बच्चा सेव कर पाता है एक महीने में, तो व्हाट आर सम सिंपल एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो वो एक्सप्लोर कर सकता है और वो शुरू कर सकता है एटलीस्ट एक उस रास्ते पे जाने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के? इसमें मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा जो लो कॉस्ट चीज होती है वो इंडेक्स फंड होता है, राइट। अच्छा, उसकी सिर्फ 500 से भी म्यूचुअल फंड ये सब कुछ मिनिमम 500 से स्टार्ट हो सकती है। तो ओके, 500 to 1000 रुपीज की, अगर 1000 वो बचा रहा है तो 1000 की सिप कर दे निफ्टी 50 की, और उसके एक्सपेंस बहुत कम होते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ग्रो 12-15% पे करेगा, है ना। तो वो बेस्ट है। अगर कोई 5000 बचा रहा है, तो मैं कहूंगा कि फिर कि 1000 रुपीज सिप में कर दे, 2000 रुपए वो अपना एक पीपीएफ अकाउंट वगैरह खुलवा सकता है ना, और या गोल्ड ईटीएफ वगैरह लेके 2000 उसमें कर दे। और 2000 में कुछ आप स्टॉक की इंडिविजुअल कंपनी, ब्लू चिप कंपनी भी ले सकते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान लीवर, है ना, 500 की कुछ लें। और क्योंकि ये हाँ, सिप है, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग इक्विटी, क्योंकि वो उसे हर महीने मिल रहे हैं, तो वो एक ट्रैकिंग कर सकता है वो, और फिर जो भी अच्छा स्टॉक है उसमें 500 रुपए डाल सकता है या 1000 डाल सकता है। इससे क्या होगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। निफ्टी से उसे ओवरऑल इंडेक्स का पता लगेगा कि भाई कंट्री में कैसे इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है। गोल्ड से उसे थोड़ा और पता लग जाएगा, प्रोविडेंट फंड उसकी है ही, और इंडिविजुअल स्टॉक से वो ओवरऑल जो इकोसिस्टम उसे वो समझ आ जाएगा बेसिकली। ओके, ओके, तो मैं इक्विटी में इसलिए भी बोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि इक्विटी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो भी मैंने लाइफ में देखा, तो मुझे लगा कि पैसा जो है वो बिजनेस में बनता है, ठीक है। तो ये सवाल से हटके है, अलग नॉलेज है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट हेयर कि पैसा जो बनता है वो बिजनेस से बनता है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, 2-3 साल जॉब करते हैं और फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं जॉब छोड़ के। तो वो थोड़ा रिस्की रास्ता है, क्योंकि आई हैव आल्सो ट्राइड दैट। उसमें क्या होता है कि आपके फेल्योर के चांसेस हैं तो 0:1 होते हैं, मतलब कि या तो आप 0 हो जाओगे या 100 हो जाओगे, है ना। क्योंकि 10-20 पे आप रहोगे नहीं, वो फेल होकर 0 ही हो जाओगे 2-3 साल। कहते हैं ना कि 10 मतलब हर एक साल में या एक साल में 100 बिजनेस में 10% ही रह पाते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर में 1% रह पाते हैं। तो वो रिस्की है। तो मैंने अपने इस जर्नी से ये सीखा कि क्योंकि बिजनेस में पैसा ये तो समझ आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग बिजनेस कर पाए, क्योंकि जॉब में हम लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन, हायरार्की, सारी चीजें सीखते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज एक बिजनेस में। तो क्या है कि आप जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, इतने सारे बिजनेसेस हाउसेस हैं जिन्होंने प्रूफ कर दिया है लास्ट 10-20-30 सालों में, उनके साथ आप एज ए पार्ट ओनर बन सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं इसको। ग्रीड में इन्वेस्ट नहीं करना है कि पैसा बनाना है इसलिए हम इक्विटी में चले जाएं। मैं बिजनेस क्या है कि हम खुद रिस्क नहीं ले रहे बिजनेस का, हम उनके साथ पार्टनर कर पा रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम नहीं लगा रहे, एंड दे आर एनफ एक्सपीरियंस्ड, सीईओ हैं, मार्केटिंग के हेड हैं, ये हैं वो है, सारे लोग हैं, एम्प्लॉय है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, और वो मिलके वो बिजनेस कर रहे हैं, एंड वी आर ग्रोइंग, आवर मनी इज ग्रोइंग थ्रू दैट। तो ये इंटेंशन है इंडिविजुअल स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में या इक्विटी में आने का। ओके, कूल, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। तो अब आपने अभी में ही इतने सारे नाम ले लिए, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एसेट्स, अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन एज अ बिगिनर
फिर मेरे साथ चैलेंज आ जाएगा कि आपने मुझे बता तो दिया, लेकिन शुरू कहाँ से करूं? शुरू जो है वो सबसे पहला बेसिक, पहला स्टेप कहाँ उठाऊं? राइट, सबसे बेसिक चीज है कि आपको सिक्योरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कराना है अपना, लायबिलिटी जो भी है, और हेल्थ के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस कराना है कि भाई अगर 20 लाख का इंश्योरेंस है, 1 करोड़ का, तो बेसिक रूल ये है कि आपकी जो सैलरी है इनिशियल ईयर्स की, उसका 10 to 20 टाइम्स आप इंश्योर्ड रहो। जैसे जैसे सैलरी ग्रोथ होता जाएगा, लाइफस्टाइल ग्रोथ हो जाएगा, वैसे वैसे आप अपनी इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ा दो। एक तो ये हो गया। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कंपनी दे रही तो ठीक है, नहीं तो आपने प्राइवेट कुछ लेके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो ये दोनों मीट हो गया, देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग कि भाई 3 to 6 मंथ का आपका इमरजेंसी फंड हो। ठीक है, जैसे आप सैलरी एक्स है तो कम से कम 3 to 6x आपका एक लिक्विड में, एफडी में रहना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी फंड के लिए वो यूज हो। अगर ये दोनों कैटर हो गया कि भाई कभी जॉब चली गई या कोई रिस्क आया, तो 3 से 6 महीने की सैलरी या एक्सपेंसेस है मेरे पास, ये फर्स्ट कर लिए। इसके बाद जो भी आपकी सेविंग हो रही है उसमें आप डिवाइड करें कि 50-30-20 रूल लगा लें कुछ, जिसमें कि आपका 50% जो है नीड पे खर्च हो, 30% आपकी एक्सपेक्टेशन वांट पे खर्च हो, है ना, 20% सेविंग हो। उस 20% का फिर जो सर मैंने बताया कि आप उसको डिवाइड करके कुछ पीएफ पीपीएफ अगर आपका ऑफिस में कट रहा है तो उसमें नहीं करना है, देन यू गो टू फिर निफ्टी में आए, म्यूचुअल फंड में आए, और अगर आपको लगता है थोड़ा सीख सकते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में आए। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है। ओके, गुड गुड। और एक क्लियर गोल भी रखें कि भाई ट्रैक करें 3 से 5 साल में कैसा रिटर्न आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हम टाइम नहीं दे रहे, हम अच्छे से पिक नहीं कर रहे स्टॉक, तो गो टू म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड इज बेस्ट फॉर, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, और वो चीजें ग्रो होती रहेगी इकोनॉमी के साथ, टाइम के साथ। ओके ओके। तो अब अभी आपने कहा कि इंडेक्स फंड में तो 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, सिप जी जो आप बात कर रहे थे। राइट, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि भैया इन्वेस्टिंग करनी है, अभी तो कमाते ही नहीं है, ये तो पॉकेट मनी पे ही जिंदा है। तो बिकॉज उनके मन में एक माइंडसेट है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इवन द मिडिल क्लास वो सोचता है अभी तो घर के खर्चे ही नहीं निकल रहे, और एक्चुअली वो उनमें ही उलझा रह जाता है, और कहते हैं ना समय निकल जाता है, और even after working for 20-30 years in a job, the person is still struggling। ठीक है, तो एक तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द माइंडसेट शिफ्ट डू दे नीड जिससे कि वो इससे बाहर आ सके? एक तो ये मिथ है कि यू नीड ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना। जैसे मैंने बताया, सिप आप 500 से कर सकते हो, इंडिविजुअल कंपनी में भी उसकी जो 1 शेयर की कॉस्ट है उतने से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी की अगर 500 रुपीज कॉस्ट है शेयर की, तो एक शेयर लेने के लिए 500 प्लस समथिंग टैक्सेस वैक्सेस जो है 20-50 रुपए वो लगेंगे। अगर किसी की कॉस्ट 2,000 रुपए, तो आपको 2,000 से कर सकते हो, आप एक शेयर ले सकते हो। ठीक है, बाहर की कंट्री में आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी ले सकते हो मतलब कि आधे डॉलर की $1 की लेनी हो, अगर वो शेयर की कॉस्ट $200 है, तो आप चाहो तो 1/4 $50 की भी ले सकते हो। इंडिया में अभी वो नहीं है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 शेयर लेने पड़ेगी। ये तो हो लेकिन गया सर कि इंडिया में तो मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एकदम से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे आईपीओ का ऐड आता है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो शेयर्स जो अच्छे शेयर्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर लोग कहते हैं आईपीओ से खरीद लो। अब आईपीओ के जो ऐड आते हैं उसमें वो कहता है कि भैया 10 रुपए का शेयर है, 500 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। और फिर वो कहता है मिनिमम 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे आपको। तो फिर वो एक शेयर कैसे लेगा, या मिनिमम नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? दो मार्केट है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो जो बाकी कंपनी लिस्टेड है दे आर इनटू सेकेंडरी मार्केट, जहां पे हम शेयर होल्डर से शेयर खरीद रहे हैं, मतलब किसी दूसरे के पास है तो हम खरीद रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड है, उससे हम खरीद रहे हैं। जब वो आईपीओ आता है, उसकी कहानी है कि कंपनी शेयर निकालती है और वो चाहती है कि आप शेयर खरीदें, तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जो है 15,000 के आसपास का होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम नहीं ले सकते, वहां पे एक लॉट लेना पड़ता है, वो अराउंड 14-15,000 का ही स्टार्ट रहता है। तो मिनिमम आईपीओ में लेना है तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अदरवाइज लिस्ट होने के बाद अगर उसकी कॉस्ट 200 रुपए, तो आप वहां पे 2-5 ले सकते हो। ओके, क्लियर है डिफिनेशन? एक आईपीओ में आपको एक लॉट लेना पड़ेगा एटलीस्ट 15,000 का, कम से कम। ओके। हाँ, तो बेसिकली लोग वहीं पे हेजिटेट हो जाते हैं कि हाँ, भाई हाँ, 15,000 रुपए तो है नहीं। तो राइट। मिडिल क्लास तो बट वो, देखिए वो हाँ, कहता है मैं मतलब रोज। आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। जो मेरी एक्सपीरियंस है, जब बात चल रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि एक चीज अवेलेबल है मार्केट में,
और वहां मिल रही है, हम जाके वहां से खरीद रहे हैं, और वहां पे कंपटीशन है, डिमांड सप्लाई का गेम है, तो वहां पे एक हमें अच्छे रेट में मिल रहा है। जब आईपीओ आता है तो मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर और सारे लोग मिलके ना बहुत ढोल बाजे के साथ उसको पब्लिश करते हैं, तो एक इन्फ्लेटेड प्राइस रहता है, थोड़ा सा डिमांड लगती है, जैसे ओके। मूवी रिलीज होती है तो बहुत ज्यादा हाइप, तो हाँ, वो एक बिल्कुल रहता है, तो बिल्कुल। लोगों को कम करना चाहिए वैसे, मतलब इट डिपेंड्स। राइट, राइट। तो अब जैसे मैं खास तौर पे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ सर, तो अक्सर बिकॉज दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, तो दे आर हेजिटेंट टू इंट्रोड्यूस देयर किड्स आल्सो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कि भाई अभी तू बच्चा है, तू पढ़ ले, इन सब चक्करों में मत पड़, ठीक है ना? क्योंकि वो खुद के बाद अवेयरनेस की कमी होती है, तो वो नहीं चाहते कि बच्चा इस सब चीजों में पड़े। तो हाउ कैन दे मेक फाइनेंस फन एंड एजुकेशनल एट होम, कि भाई बच्चे सीखें भी, और क्योंकि दिस इज, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, इट्स अ वेरी नेसेसरी लाइफ स्किल। तो स्टार्ट इसमें इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि पॉकेट मनी हम देते हैं, तो मनी की तो इंट्रोडक्शन हो गई। अगर हम कुछ नहीं दे रहे तो उनको लगता है कि जैसे पानी की फ्लो होती है उस तरह मनी की भी फ्लो कहीं से होता है, और हम चीजें खरीद लेते हैं। तो उनको वो बताना पड़ेगा कि हम कोई सर्विस देते हैं, ऑफिस जाते हैं, देन इन रिटर्न हमें मनी मिलता है, तो आपको जो हम डिमांड हो रही है वो मनी हमारे एक्टिव इनकम से आ रहा है, और फ्यूचर में आपको भी इस तरह से, तो उनको फ्लो बताना चाहिए एक तो। फिर हम उनको देते हैं कि चलो अभी से आप कुछ पॉकेट मनी मिल रही है आपको, तो उस पॉकेट मनी से आप कैसे एक्सपेंस कर रहे हो। अगर 1000 रुपीज की पॉकेट मनी है तो आप 300 400 की कुछ बुक खरीद रहे हो या कोई टॉय खरीद रहे हो, तो रेस्ट कितने बच रहे हैं, तो उसमें उनको सिखाना चाहिए कि आप एटलीस्ट 50% जो है नीड पे खर्च करो, 30% कुछ वांट पे खर्च करो, है ना, और 20% सेव करो। तब वहां से उनको लगेगा कि नहीं, ये परसेंटेज का गेम है, बिकॉज नोइंग परसेंटेज ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर राइट। वो आगे चल के भी उसी तरह का माइंडसेट बन जाएगा। तो जैसे मैं भी करता हूं, तो मैं जो भी पॉकेट मनी देता था स्टार्टिंग में वो कलेक्ट करके इकट्ठा हो गया, फिर मैंने बैंक में जमा कर दिया, अकाउंट खुलवा दिया, तो मतलब वो दिखता है कि भाई इतना था, अब इसमें इंटरेस्ट मिल गया, तो लोगों को ये नहीं पता था अच्छा पैसे रखने से भी कुछ बढ़ते हैं वो। जब वो पता लगता है बच्चों को तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, अच्छा तो फिर जो भी पैसे हाँ। बर्थडे में या वैसे ऐसे मिलेंगे तो पापा इसे इन्वेस्ट करते हैं। राइट, राइट, तो राइट, राइट। ये एक दैट्स तरीका हो सकता है, प्लस बहुत सारे फन गेम है, मोनोपोली है जैसे, जो कि किड्स के गेम है, दैट आल्सो हेल्प टू ग्रो दैट फाइनेंशियल नॉलेज टू किड्स। अच्छा। ओके। मोनोपोली एंड। मोनोपोली है, और भी है, मैं अच्छा। शेयर कर सकता हूँ, कुछ आप अपने ओके। डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। बिल्कुल। और सर, जैसे कमिंग टू द एंड, बिकॉज दिस इज रियली बिकमिंग इंटरेस्टिंग, तो योर मिशन इज टू help people become financially independent, right? And you've always हम्म। mentioned that. So if you had to give students and parents just 3 golden rules to achieve financial freedom, तो आप क्या कहेंगे? What would they be? इसमें तो मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट यू कैलकुलेट योर नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैलकुलेट, अपना नेटवर्थ पता होना चाहिए। नेटवर्थ में क्या है कि पहले आप अपने सारे पॉजिटिव एसेट कैलकुलेट करो, उसके बाद लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, क्या लोन चल रहा है, क्या ये है। तो मेन जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट हो गया जैसे रियल स्टेट हो गया, कुछ मतलब फिक्स्ड रिटर्न गिविंग एसेट हो गया जैसे एफडी, पीएफ, पीपीएफ वगैरह हो गया, कुछ बिजनेस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इस टाइप के। तो इन तीनों को क्लब करके ये पॉजिटिव एसेट को आप करोगे, एंड देन लाइबिलिटी जो भी लोन वगैरह उसे हटाओगे, तो जो नेट बचा वो नेटवर्थ है। तो कैलकुलेट योर नेटवर्थ फर्स्ट। नेटवर्थ पता लगने पे फिर आपको लगेगा कि आप कहाँ पे हो और क्या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर होनी चाहिए। तो आइडियली इट शुड बी अराउंड 10 टाइम्स योर करंट टेक होम सैलरी कह सकते हैं, या सीटीसी कह सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो अगर कोई 10 लाख कमा रहा है और उसके पास 1 करोड़ का मतलब वो गोल है कि भाई 1 करोड़ में मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, तो क्या होगा कि अगर आप 10% भी 1 करोड़ से रिटर्न लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो 10 लाख हो गया। तो ये फ्रीडम की साइकिल है। अगर किसी का 20 लाख है तो उसका टारगेट होना चाहिए कि 2 करोड़ का मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाए जो कि 10% रिटर्न मिले, तो मेरे को 20 लाख मिलेगा, तो मैं फ्री हो जाऊंगा। अब फ्री होऊंगा तो टाइम फ्रीडम मिल जाएगा आपको। फिर आपको इंजॉय कर रहे हो जॉब में या बिजनेस में, तो आप करो वो, बट यू शुड हैव ए फील कि भाई हाँ, मैं फ्रीडम अचीव कर लिया। और जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो वो अमाउंट आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो वो भी टारगेट बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ब्रेक इवन हो जाएगा वो, राइट। तो ये Right. नेटवर्थ कैलकुलेट करना, फिर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करना, और जो है इन्वेस्ट आप करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें,
और पैरेलल इनकम जनरेट कर पाए तो वो और जल्दी अचीव हो जाएगी। Perfect. Thank you, sir. Thank you for such insightful conversation. मन तो कर रहा था और आपसे पूछा जाए, but yes, because of lack of time, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट करें, जिससे कि बिल्कुल बच्चों सर। को और कुछ ज्ञान मिले आपसे और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सके, बिकॉज यस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। क्योंकि ये स्किल ना होना आजकल के समय में इट इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स। ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है ये स्किल अगर बच्चों के पास होगी तो वो अपना करियर ग्रोथ और बेटर तरीके से फाइनेंस और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को ढंग से कर पाएंगे, so that in the years to come they can have real good value of their life. They can enjoy their life actually, right, sir? So thank you, राइट। thank you for coming, sir. थैंक यू वेरी मच।